Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have discussed about section formula and midpoint formula. How this section formula is used in order to find the position vector of an unknown point which divides the directed line segment in the ratio m1 is to m2, and in special case midpoint formula, if that point C is the midpoint of directed line segment AB, then what would be the position vector of that point C that we have discussed in the previous class. Now today's class will again start by a brilliant concept, and that is a resolution of a vector in a plane. इसके बाद हम इन स्पेस भी डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन क्या होता है, एक वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक वेक्टर को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन अ प्लेन. तो ये रहेगा आज का टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन. तो सपोज वी विल कंसिडर अ प्लेन, हम एक प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं विथ equipped with two-dimensional Cartesian coordinate system x dash and y dash, two perpendicular axes with O as origin. So we have considered a plane equipped with two-dimensional Cartesian coordinate system with O as the origin, such that x dash and y dash are two perpendicular axes intersecting at the origin. तो यहां पर हम लिखेंगे let us consider a plane, let us consider a plane, हम एक प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं equipped with, let us consider a plane equipped with two-dimensional Cartesian coordinate system, equipped with two-dimensional Cartesian coordinate system with O as the origin. O ले रहे हैं as the origin. x dash and y dash being two perpendicular axes. x dash and y dash and y dash being two perpendicular axes. Two perpendicular axes intersecting or meeting at point O, that is the origin. अब ये OX डायरेक्शन जो है that is the positive direction of x axis, और OY डायरेक्शन जो है that is the positive direction of y axis. Now along the positive direction of x axis we are taking a unit vector that is denoted by I cap. So I cap is nothing, just a unit vector along the direction of along the positive direction of x axis. Means it is that sort of vector which gives us the positive direction of x axis. Being unit vector, its magnitude must be equal to 1. So by multiplying 1 जरा इसमें फर्क नहीं आएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा इसमें, इसलिए हम आई कैप को ले रहे हैं यूनिट वेक्टर. तो आई कैप एक्चुअली है क्या, इट विल गिव अस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. Similarly, we are taking j cap as the unit vector along the positive direction of y axis, and in the resolution of vector in space we will take k cap along this unit vector along the positive direction of z axis. तो यहां पर हम मेंशन करेंगे let I cap and j cap be the unit vectors. Let I cap and j cap be the unit vectors along the respectively along the positive directions of x axis and y axis respectively. x axis and y axis respectively. I cap हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिट वेक्टर along the positive direction of x axis, और j cap हम कंसिडर कर रहे हैं यूनिट वेक्टर along the positive direction of y axis. हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो ये जो वेक्टर अंडर कंसिडरेशन रहेगा, सपोज वो वेक्टर है v.
let V be a vector which is a vector in a plane under consideration. Since it is vector V, it must be represented by some directed line segment. If it is represented by some directed line segment, obviously it has its initial point, and let that initial point be A and let its final point be B, means it's a vector V. So let V be a vector which is equal to AB vector represented by directed line segment AB, such that we have to resolve this vector AB which is under consideration. Now, so let यहाँ पे mention करेंगे, let vector V is equal to AB vector be any vector in plane. हम plane की बात अभी कर रहे हैं. Be any vector in plane under consideration. जो हम consider कर रहे हैं means जिसको हमने resolve करना है into its corresponding components, break down करना है into its corresponding components. So अब इसी plane में हम suppose एक point P ले रहे हैं यहाँ पे. Let P be any point in the same plane. लेकिन इस पॉइंट P को इस सेम प्लेन में इन सच वे ले रहे हैं सच दैट अगर इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ और डायरेक्शन दे देंगे फ्रॉम O टू P, ये वेक्टर OP जो बनेगा यही वेक्टर V होना चाहिए, यही वेक्टर AB होना चाहिए. मीन्स हम इस वेक्टर V जो AB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हम और एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट O है और जिसका फाइनल पॉइंट सपोज P है. मींस हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेक्टर V को यहां से हटा के यहां से उठा के यहां पे रख रहे हैं. इसके इनिशियल पॉइंट A को हम कोइंसाइड कर रहे हैं विद द ओरिजिन और इसके फाइनल पॉइंट B को हम कोइंसाइड कर रहे हैं विद पॉइंट P. यानी यही वेक्टर यहां से हटाया जा रहा है और यहां पे रखा जा रहा है सच दैट इट्स इनिशियल पॉइंट A इज कोइंसिडेंट विद द ओरिजिन एंड इट्स फाइनल पॉइंट B इज कोइंसिडेंट विद पॉइंट P. तो यहां पे मेंशन करेंगे हमने वेक्टर AB लिया है, सो हम फिर से लिखेंगे लेट P be any point और P be a point in the same plane. इसी पॉइंट में, इसी प्लेन में हम एक और पॉइंट ले रहे हैं P such that अगर हम O से P तक एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, जो OP वेक्टर बनेगा वही होना चाहिए AB वेक्टर, यानी वही होना चाहिए वेक्टर V. ठीक है जिगरा. So vector OP is represented by AB vector और V vector, यानी यही वेक्टर AB जो अंडर कंसिडरेशन है जिसको हमने रिजॉल्व करना है, इसको यहां से हटा के यहां पे रख लेते हैं such that its initial point will coincident with O and its final point B is coincident with point P. आप क्या करेंगे जिगरा, इस पॉइंट P से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑन OX और XO X डैश. सो जहां पर ये XO X डैश को मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज उस पॉइंट का नाम रखेंगे यहां पे M. सो M इज नथिंग, M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन XO X डैश. तो यही चीज यहां पर मेंशन हम करेंगे, लेट M be the foot of perpendicular from P on XO X डैश. जो हम पॉइंट P से ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर ऑन XO X डैश और पॉजिटिव OX, उसका नाम वहां पे जहां पे वो OX को मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हमने रखा वहां पे M. तो जिगरा अगर हम यहां पे देखेंगे O से लेके M तक कोई डिस्टेंस होगी और M से लेके P तक कोई डिस्टेंस होगी. सो O से लेके M तक की जो डिस्टेंस है सपोज उसको हम डिनोट करेंगे, मेंशन करेंगे बाय X, और M से लेके P तक जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज ले रहे हैं Y. सो लेट OM इज इक्वल टू X एंड MP इज इक्वल टू Y. तो यहां पे मेंशन करेंगे लेट OM इज इक्वल टू X एंड MP इज इक्वल टू Y. OM हमने, क्योंकि डायरेक्शन इसी तरह है तो MO नहीं आएगा, OM आएगा. यहां पे डायरेक्शन है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए PM नहीं MP आएगा. तो M से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो हमने Y कंसिडर की है. तो देयरफॉर अगर हम इसको देखेंगे
तो देयरफॉर अगर हम बात करेंगे फिर ओ एम वेक्टर की, अगर हम बात करेंगे ओ एम वेक्टर की, तो जिगरा ओ एम एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। सो ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या है, मीन्स ओ से लेके एम तक की लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो हमने लिया है एक्स। सो दैट इज एक्स इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसकी ओ एम की जो डायरेक्शन है वो है along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी हैव मेंशनड द डायरेक्शन, वी हैव मेंशनड द सेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, आई कैप। तो यहां पे आई कैप इस एक्स के साथ मल्टीपल होगा। सो एक्स आई कैप वुड बी अ वेक्टर which is equal to what, OM vector, because the magnitude of OM vector is x and the direction of OM is represented by I cap, because the direction of OM is along the positive direction of x axis and I cap is again the unit vector along the positive direction of x axis. So OM vector must be equal to xi cap. Similarly अगर बात करेंगे हम MP वेक्टर की, तो MP वेक्टर किसके बराबर आएगा, MP फिर से एक वेक्टर है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड होगा, इसकी खुद की कोई डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड होगा MP, M से लेके P तक की डिस्टेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Y, और M से लेके P तक की डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज एक्चुअली द डायरेक्शन along the positive direction of Y axis. But what is the direction? What is the direction along the positive direction of y axis? That is actually represented by what, j cap. तो यहां पे मल्टीपल होगा इसके साथ j cap. So y j cap must be equal to mp vector, because y would be its magnitude and j cap would be the direction, because mp's direction is along the positive direction of y axis and j cap is again the unit vector gives us the direction along the positive direction of y axis. नाउ अगर इस फिगर को देखेंगे, मैंने जिगर आपको बता दिया है कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ प्लेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जहां, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि अगर कोई कपड़ा किसी कील या किसी पेन में फंस जाता है, तो वो कपड़ा डायरेक्टली जहां पे वो फंसता है, फिर डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में कट नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में कटता नहीं है, वो कटता है एल शेप में। ऐसा क्यों, ये भी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिगर OM वेक्टर फिर आ गया xi कैप और MP वेक्टर आ गया yj कैप। नाउ अगर हम इस फिगर को देखेंगे, फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्वियस दैट फिगर में हमारे पास जिगरा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों साइड की अपनी अपनी डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली यहां पे अप्लाई होगा ट्रायंगल लॉ। तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर या नाउ फ्रॉम फिगर वी हैव, हाँ जिगर व्हाट वी हैव, we have OM vector or MP vector are two vectors. OM vector and MP vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order. Then their sum or resultant must be a vector represented by the third side taken in opposite order, because by triangle law of vector addition, and that third side must be fulfilled by what vector? That is OP vector. So OM vector plus MP vector must be equal to what? OP vector. तो यहां पे लिखेंगे OM vector plus MP vector must be equal to OP vector, because by triangle law. So OM vector plus MP vector must be equal to OP vector, because by triangle law. Implies this can be written as, RHS को पहले ले लो, तो OP vector must be equal to, what is OM vector? That is xi cap, so xi cap plus what is MP vector? yj cap, so yj cap, which further implies that this can be further written as, but OP is a vector which is actually V vector or AB vector. So instead of OP implies we can write OP vector is equal to, ये है actually AB vector and वो है actually कौन सा vector? V vector, and that's equal to xi cap plus yj cap. Here the vector V, हमारे पास था vector V, but that has been resolved as the sum of its two components.
एक कंपोनेंट है जिगरा एक्स आई कैप अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई जे कैप अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वेक्टर था v, लेकिन उसको हमने जब सुप्लिट किया है, ब्रेक डाउन किया है एज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, एक वेक्टर जो वहां पे निकल के आया है वो है एक्स आई कैप, पर एक्स आई कैप जो वेक्टर आया है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एम और वो वेक्टर है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और सिमिलरली जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एमपी वेक्टर, बट एमपी वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट y axis. So a vector v which is AB which is OP has been resolved as the sum of two vectors. One is xi cap which is along the positive direction of x axis. Next is yj cap which is along the positive direction of y axis. So vector v has been resolved as the sum of two vectors एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। लेकिन अगर फिगर को देखेंगे तो एक्स आई कैप और वाई जे कैप, ये यहां पे वाई जे कैप है तो सिमिलरली ये भी वाई जे कैप ही होगा। सो एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप आर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज वाई अगर फोर्स की बात करेंगे तो हमारे पास जिगरा वेक्टर वी था, एक वेक्टर वी था जिसको हमने रिजॉल्व किया है इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ऐसे बना था अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जिसका नाम पड़ा था एक्स आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे हुआ जिसका नाम है वाई जे कैप विच इज एक्चुअली अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो वन कंपोनेंट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेक्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis. So a vector v has been resolved as the sum of two components. तो इसी तरह जिगरा, इसी तरह अगर हमारे पास कोई फोर्स होगा, कोई वेक्टर होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये फोर्स वेक्टर भी अगर हम प्लेन में ले लेंगे, अगर यहां पे अप्लाई हो रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर यहां पे अप्लाई हो रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में तो फोर्स टोटली इसी डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होगा, ये फोर्स एफ भी रिजॉल्व होगा इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। One component must be equal to one component must be along the positive direction of x axis and अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो that component must be equal to f cos theta and दूसरा component जो होगा that must be along the positive direction of y axis and that component must be represented by f sin theta. So f cos theta and f sin theta are two components of f along the positive direction of x axis and positive direction of y axis respectively. तो इसी तरह जिगरा अगर कपड़ा, ये सपोज ये एक कपड़ा है तो यहां पे ये कील या किसी पेन में फंस जाता है, फोर्स इस तरह अप्लाई होता है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं कटेगा, ये फोर्स एफ जो है ये रिजॉल्व होगा, पूरा फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये फोर्स एफ जो है रिजॉल्व होगा इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। Part of the force would be along the positive direction of x axis and part of the force would be along the positive direction of y axis. तो पार्ट ऑफ द फोर्स इस डायरेक्शन में, पार्ट ऑफ द फोर्स इस डायरेक्शन में, कपड़ा यहां से भी कटेगा, कपड़ा यहां से भी कटेगा, लेकिन इस डायरेक्शन को देख लेंगे तो बनेगी एक एल शेप, परपेंडिकुलर शेप। इसीलिए जब कपड़ा किसी पेन या कील में फंस जाता है तो कटता है एल शेप में, क्योंकि फोर्स उसी तरह नहीं लगता, वो फोर्स जो है दैट हैज बीन एक्चुअली रिजॉल्व्ड, वो फोर्स रिजॉल्व हो जाता है as the sum of horizontal component f cos theta and vertical component f sin theta। यहां से भी फोर्स, यहां से भी फोर्स, तो कपड़ा जो है कटता है L shape। So that is actually the consequence of what? Resolution of vector in a plane and same thing happens there। हमारे पास जिगरा था वेक्टर v which is represented by directed line segment AB, और जब हमने इसे रिप्रेजेंट किया फिर से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP से, तो ये वेक्टर OP था इस डायरेक्शन में रिजॉल्व हो गया OM डायरेक्शन, OM वेक्टर along the positive direction of x axis and MP वेक्टर along the positive direction of y axis, that is xi cap along x axis and yj cap along y axis. So a vector v has been resolved as the sum of its two vectors, as the sum of its two components. One is xi cap and next one is yj cap. This vector v xi cap plus yj cap is called the resolution of vector v into its components in a plane, because we are talking about only two-dimensional axes. ठीक है जीरा। तो फर्दर ये x जो है, x और y जो है ये एक्चुअली क्या है?
x जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v along x एक्सिस, और y जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ v along y एक्सिस। लेकिन अगर सिर्फ x की बात करेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर कंपोनेंट बनेगा, वेक्टर कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो इसी तरह अगर हम y की बात करेंगे, वो भी एक कंपोनेंट होगा बट विथआउट डायरेक्शन, एंड दैट मस्ट बी अगेन द व्हाट, स्केलर कंपोनेंट। तो यहां पे मेंशन करेंगे x and y are called the scalar components, x and y are called the scalar components of a vector v, along the x-axis and x-axis। अगर एक की बात करेंगे तो AXIS एक्सिस, अगर दो एक से ज्यादा दो तीन की बात करेंगे तो एक्सीज AXES आता है। तो along the x-axis and y-axis are x and y are called the scalar components of a vector v along the positive directions, of x-axis and y-axis respectively। x-axis and y-axis respectively। तो जिगरा ये x जो है ये इस वेक्टर v का स्केलर कंपोनेंट है along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और y जो है ये इस वेक्टर v का ही कंपोनेंट है बट विदाउट डायरेक्शन, तो स्केलर कंपोनेंट बट along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यही हमने यहां पे मेंशन किया। तो अगर x की बात करेंगे वो स्केलर कंपोनेंट है along x एक्सिस, और y की बात करेंगे वो है स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। लेकिन जिगरा अगर हम बात करेंगे अब xi कैप और yj कैप की अलग अलग से, ये x था स्केलर कंपोनेंट के साथ हमने ऐड की डायरेक्शन i कैप, तो ये अब स्केलर कंपोनेंट नहीं रहा, ये अब वेक्टर कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली yj कैप, y था स्केलर कंपोनेंट along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, लेकिन इसके साथ हमने डायरेक्शन ऐड कर दी, तो ये अब स्केलर नहीं बनेगा, वेक्टर कंपोनेंट। सो yj कैप इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड इन अ प्लेन along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसीलिए xi कैप और yj कैप बनते हैं कौन से कंपोनेंट्स, वेक्टर v के बनते हैं, नॉट स्केलर कंपोनेंट्स बट वेक्टर कंपोनेंट्स। दिस xi कैप एंड yj कैप आर देयरफॉर नोन एज कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर v along the positive directions of x-axis and y-axis respectively। या इन्हें वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं या कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो यहां पे मेंशन कर देंगे xi कैप एंड yj कैप are called the vector components, oblique कंपोनेंट वेक्टर्स, या इन्हें वेक्टर कंपोनेंट्स कहते हैं या कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं along x एक्सिस, क्योंकि xi कैप along x एक्सिस है, along x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो xi कैप जो है वो बनता है जिगरा, xi कैप जो है वो बनता है कंपोनेंट वेक्टर along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और yj कैप जो है वो बनता है कंपोनेंट वेक्टर along द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जिगरा जब O से लेके m तक की डिस्टेंस x है और m से लेके p तक की डिस्टेंस जो y है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, ऑब्वियसली, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। जब इसके जिगरा कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो डेफिनेटली ये लाई करेगा किस में, प्लेन में, क्योंकि अगर ये स्पेस में लाई कर रहा है तो तब एक और कोऑर्डिनेट भी होगा, दैट इज z कोऑर्डिनेट। x coordinate of a point, as I have mentioned in the classes, x component of the point or x coordinate of a point, it is also called abscissa, 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 or y coordinate of a point is also known as ordinate, ordinate। अगर z coordinate होता,
मतलब अगर ये पॉइंट स्पेस में लाई करता तो इसका z कोऑर्डिनेट भी होता और उस z कोऑर्डिनेट का नाम पड़ता दूसरा एप्लीकेट, APPLICATE, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एप्लीकेट. So x coordinate of a point is also known as, yes, abscissa. Y coordinate of a point is also known as, yes, ordinate. And z coordinate of a point is also known as, yes, jigra, applicate. Keep remember these things, they are very much important. तो जिगरा अगर एक पॉइंट हमारे पास P है जो प्लेन में अभी लाई कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट है, जिसका y कोऑर्डिनेट है, जिसका एब्सिसा है, जिसका ऑर्डिनेट है, तो इसका क्या मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. इसका ये मतलब कि अगर इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर हम डालेंगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और परपेंडिकुलर डालेंगे टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो अगर ये हमारे पास ओरिजिन है, इसका मतलब O से लेके, अगर इसका नाम M है और इसका नाम यहाँ पे N है, तो O से लेके M तक की डिस्टेंस x आएगी और O से लेके N तक की जो डिस्टेंस वो y आएगी. So x coordinate and y coordinate of a point are nothing. They are just the distances of that point. यानी वो पॉइंट कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनता है, और वो पॉइंट कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग वाई एक्सिस, वो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बनता है. इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा कि वो पॉइंट कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग जेड एक्सिस, यानी अगर उस पॉइंट से हम रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स डालेंगे, जो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और अगर हम उस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जिगरा उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो y आएगी, और इसी तरह z कोऑर्डिनेट यानी एप्लीकेट पे भी अप्लाई होगा. ठीक है जिगरा. सो दिस वाज द टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन. एक वेक्टर को हम कैसे रिजोल्व करेंगे प्लेन में, और ये रिजोल्व कैसे होता है, और इस x और y को हम क्या कहते हैं, एक्स आई कैप और वाई जे कैप को क्या कहते हैं. तो ये था जिगरा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन. लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे ऑब्जर्वेशंस में इंशाल्लाह, but in the next class. So next class we will discuss, in the next class we will discuss the observations under the concept of resolution of a vector in a plane. इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, और इसी कंसेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे अप टू रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस. अगर प्लेन में ऐसे रिजॉल्व होगा तो स्पेस में रिजॉल्व कैसे होगा. अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हैं एक्स और वाई, स्पेस में क्या बनेंगे. अगर यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट्स बनते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो स्पेस में क्या बनेंगे. अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ आता है तो वहां पे मैग्नीट्यूड क्या बनेगा. तो ये सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में. सो तब तक के लिए खुदा हाफिज.